I got a rejection, I used to be like ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को जो बाहर रहते हैं सबके वीडियोस देख चुकी हूँ और सबका यही कंप्लेन है, खाना अपने जैसा नहीं है, कल्चर अपने जैसा नहीं है। नहीं होगा क्योंकि वो अलग देश है। मुझे तो यहाँ पे रहना भी नहीं था, बट आई हैड टू मेक इट वर्क क्योंकि कोविड था, फ्लाइट्स बंद थे। व्हेन पीपल प्लान टू गेट मैरिड एंड हैव किड्स दे मूव टू दैट सिटी, बट आई वाज 25 at the time, and if you're young and if you're craving people and culture, move to cities. End of the year special episode with the Moses family, with my parents. अरे जितना मेहनत किया था वो सब बिखर गया। The Indian diaspora is the largest diaspora in the world right now. We are more than 33 million Indians living outside of India. Namaskar, Shalom and welcome. My name is Ravital Moses aka Moses in Israel, your favorite Indian Jew, born and raised in India and now living in Israel. And my goal is to bridge India and Israel one video at a time, and today I'm going to be telling you about my personal experience living as an Indian in the diaspora in Israel as an immigrant. तो चलो शुरू करते हैं. I'm going to give you a little bit of context. Now, there are so many Indians in the world, especially living in the diaspora, जो हम जैसे लोग बाहर रहते हैं अलग अलग कंट्रीज में, काफ़ी मेहनत करके काफ़ी सक्सेसफुल पाथ पे. Again, I'm not talking for everybody, but most Indians, ये रिकॉर्ड रहा है कि we work very very hard and are trying to accomplish and trying to have some strong Indian representation abroad. Garv hota hai when you see Indians like Sundar Pichai and Satya Nadella, because this brings representation, belongingness and goals for people like us. By the way, this is in no way encouraging Indians to leave Bharat. No, this is not a video. If you choose to live in India, this is and that will be the greatest choice in your life that you will ever make. But if you choose कि नहीं मुझे बाहर जाना है for work experience या just I need a change, I need to go and live in another country as an immigrant, as a diaspora, that is also a great choice. एक बात ध्यान में रखिए, when you live as an immigrant in another country, you kind of start from scratch. Exceptions can be if you are on and off flying to that country and have connections, तो अलग बात है. But if you are like आम आदमी like me and you're going to decide to move to another country and start from scratch, keep in mind there are a few things that took me time to figure out, but I'm going to give you some tips and tricks and mindset strategies that will help you fast track your successful life as an Indian abroad. तो चलो शुरू करते हैं. First thing is research. You need to understand where you're going to live and also understand why you want to live. First of all, the question should be why you want to leave India. Okay, there could be educational purposes, to find love, I don't know, money opportunities, blah blah blah, could be anything, but find your reason why you want to leave the country. Okay, because once you decide to leave, you have to do your research. When I say research, आपको online research करना पड़ेगा. जो लोग already रह रहे हैं और जो online videos बना रहे हैं like me, get in touch with these people and ask how life is like. As simple as groceries का दाम कितना है, rent कितना है, electricity कितना जाता है, opportunities कैसे हैं, if you're especially finding to moving to find love, what are the dating strategies, क्योंकि हर एक country का culture अलग होता है. So you have to do your research. Again, keep in mind, even after doing research, तुम्हारे जो expectations है वो मीट हो 100%, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. There will be plus and minuses, but if you do your research, I think you will be mentally prepared कि भाई ये ऐसे ऐसे हो सकता है. Permutations and combinations, okay? In addition, if you have the opportunity to take a work project for 6 months or internship or student exchange programs in the country you want to live in, take it. Or if you're financially stable and have the funds to take a trip, I won't say a trip, but live for 6 months in that country, because taking a 10-day trip versus living in that country for 6 months to a year, काफ़ी डिफरेंस है. बिकॉज 10-day ट्रिप में you will see all the best things, you will explore as a tourist. बट जब आप वहाँ पे रहते हो, आप वहाँ का कल्चर सीखते हो, वहाँ का रहना, खाना पीना, लोगों से बात करना, लैंग्वेज, whatever it is, वो आप डिटेल में over a period of weeks and months सीखते हो. So if you have an opportunity, I highly recommend visiting and staying in that country so that you know what you're in for. Number 2, mindset. You have to mentally prepare that you will have challenges no matter what.
स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी हु प्लान ऑल द टाइम, बिकॉज मेरे को पता है कि भाई ये मैं ऐसे 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 करूँगी, बट यू नो लाइफ इज़ गोइंग टू बी, लाइफ विल नॉट गो एज पर प्लान। तो आपका जो मेंटालिटी है, माइंडसेट है, यू नो व्हाट, आई नीड टू बी ओपन टू एक्सपीरियंसेस, वो रखना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत सारे रिजेक्शंस आएंगे, स्पेशली व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब और इफ़ यू आर इवन डेटिंग। आई थिंक मेरे लाइफ में ये दो चीज़ों में काफ़ी रिजेक्शंस आई, एंड इट इज़ ओके बिकॉज दैट्स हाउ यू लर्न, बट आई हैड टू कीप एन ओपन माइंड सेट। मेरे को बार बार मतलब यू नो आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बिकॉज बार बार आई हैड टू I got a rejection. I used to be like, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? But it's just basically you're going to learn a few lessons and eventually you will get it. Again, I'm not saying ये आपके साथ ही होगा, but there's a possibility कि आपको, you know, if somebody might take 6 months, it might take you a year and a half. So be open to that. Also, as Indians, you know, we are born and raised in a culture जो काफ़ी अलग है, especially from Middle Eastern और जो वेस्टर्न सोसाइटी है उसका जो कल्चर है वो बहुत अलग है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कुछ खरीदने जाते हैं, एज एन इंडियन पर्सन यू विल ऑलवेज, माइंड यू, ऑलवेज आप वो ना एक्सचेंज रेट पे कन्वर्ट करोगे। इफ यू आर गोइंग टू डू दैट, यू विल नॉट बी एबल टू लिव इन एनी ऑफ दीज कंट्रीज। तो वो छोड़ दीजिए, बिकॉज यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, जब आप यहाँ पे पैसे कमाते हो, यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है। अगेन, बुरा अच्छा ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बस अलग है, तो उसके हिसाब से उसके प्राइजेस होंगे। यू विल कंप्लेन अ लॉट अबाउट फूड एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। सो यू ईदर suck it up and just embrace the culture, or you learn how to cook Indian food. In my case, my mom cooks. I just don't have enough time to cook Indian food. मैं कभी भी बना लेती हूँ, but because I do so many things, I have learned to embrace Middle Eastern food. कभी कभी फीका लग जाता है, but अभी 5 साल हो गए तो बस मतलब खा लेते हैं थोड़ा बहुत। And you know, if I miss Indian food, I either ask my mom or we host Indian nights. अगर आप कभी इजराइल आए और मेरा इंडियन नाइट हो तो आप ज़रूर आना। एक चीज़ आप दिमाग में रखिए, इंडिया में क्योंकि इतने सारे लोग हैं, वो जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं ना, जूते पॉलिश करने वाले अंकल या पानी पूरी बनाने वाले भैया, ये सब आपको स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में या इजराइल में तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बस अलग है। फूड ट्रक्स आपको मिल जाए, बट जो ठेला वाला जो कॉन्सेप्ट है या कल्चर है यहाँ पे नहीं है। तो you will miss it and you will rant about it, but it's okay. Just be open to learning about different cultures, especially अभी मिडल ईस्टर्न कल्चर थोड़ा सा, अगेन इट डिपेंड्स आप कहाँ रहते हो, कि मिडल ईस्ट काफ़ी बड़ा है। मैं रहती हूँ एक छोटे से देश में जिसका आई थिंक पॉपुलेशन इज़ अबाउट 10 million people in the entire country. पर मैं तेल अवीव में रहती हूँ, जो यू नो मुंबई के इक्विवेलेंट हो सकता है। ऑफ कोर्स मुंबई इज़ the biggest city, one of the biggest cities. But अब जब सिटी में रहते हो ना, you will learn a lot, because especially अगर अगेन इट डिपेंड्स, आप सिटी प्रेफर करते हो या सबर्बन लाइफ प्रेफर करते हो या यू नो माउंटेन्स और नेचर प्रेफर करते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु प्रेफर्स बीइंग अराउंड पीपल, बिकॉज आई वाज जस्ट born and raised in Thane city, which is one of the biggest cities in Maharashtra, and I'm used to the hustle bustle खाना, multicultural जो concept था वहाँ का, तो मुझे वो चाहिए था। I was longing for that. मैं जब आई यहाँ पे, I stayed in a city called Ranana, which is beautiful by the way. I think when people plan to get married and have kids, they move to that city. But I was 25 at the time, and if you're young and if you're craving people and culture, move to cities. But इतना याद रखना कि अगर आप cities में रहोगे तो उसका cost of living ज़्यादा होगा, तो उसके हिसाब से आपको mentally prepare करके you have to live your life. My third point is being open to the other country's culture. ये मैंने second point में भी बोला था, but especially as Indian people हम बहुत struggle करते हैं। ये मैं मेरे बारे में नहीं बोल रही हूँ, एज अ कम्युनिटी बोल रही हूँ। मैं काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को जो बाहर रहते हैं सबके वीडियोस देख चुकी हूँ, और सबका यही कंप्लेन है, खाना अपने जैसा नहीं है, कल्चर अपने जैसा नहीं है। नहीं होगा, क्योंकि वो अलग देश है। सो वंस यू मेक पीस विथ इट, आई थिंक इट विल बी ईजी फॉर यू टू यू नो बी ओपन टू अदर एक्सपीरियंसेस। अभी यहाँ पे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाना दोनों मिलता है, बट एज समबडी हु इज़ इंडियन, आई एम नॉट यूज्ड टू ईटिंग बीफ, राइट? तो वो काफ़ी एक कल्चर शॉक था मेरे लिए। या फेस्टिवल्स की बात करो, टॉक अबाउट फेस्टिवल्स, होली, दिवाली,
दशहरा, नवरात्रि, स्पीक अबाउट एनी फेस्टिवल्स, हम धूमधाम से मनाते हैं इंडिया में, ठीक है। इज़राइल में इनका धूमधाम का लेवल अपने से बहुत कम है, बट उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है वो। सो यू विल सी दी स्मॉल थिंग्स हैपनिंग एवरीवेयर। अगेन आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल्स ऑफ Israel, but this will apply to any other country that you're living in, because India exceptionally is a very different country in terms of culture and you know how we communicate. तो वो लेके चलो आपके दिमाग में, and I think it will get better over the years. My first year was terrible, to be honest. मुझे तो यहाँ पे रहना भी नहीं था, but I had to make it work क्योंकि कोविड था, फ्लाइट्स बंद थे, and you know if you don't work, who is going to pay the rent? अपना खुद का घर तो है नहीं यहाँ पे। तो वैसे करते करते मुझे काफ़ी टाइम लगा। अभी 5 साल के बाद मुझे लगता है कि हाँ, कि यहाँ पे कुछ तो हो सकता है, इन स्पाइट ऑफ मल्टीपल वॉर्स एंड यू नो द लैंग्वेज एंड स्टफ लाइक दैट। ओ अनदर थिंग, टॉकिंग अबाउट कल्चर, ओके, डिपेंड्स। अब अगर नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज कंट्री में जाते हो, इफ़ यू गो टू द UK, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इट बी ईजियर। बट इफ़ यू गो टू कंट्रीज लाइक यू नो इज़राइल, सब कुछ हिब्रू में होता है, ओके। योर फॉर्म्स, योर डायरेक्शंस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे होता है, या आई डोंट नो, इवन पीपल टॉकिंग इन ऑफिस, जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस होते हैं, दे आर ऑल इन हिब्रू। सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू गेट इनटू अ लर्निंग फेज। आपको अनलर्न करके लर्न करना पड़ेगा। इट गेट्स टफर एज यू ग्रो ओल्डर। तो इसीलिए आई थिंक पीपल डिसाइड टू लीव व्हेन दे आर यंगर, क्योंकि आपको जो एब्जॉर्बिंग पावर होती है, I think वो ज़्यादा होती है। And you know, compared to my parents, I think my sister has been able to integrate the most. I am still like that, ठीक है। My parents have had the toughest time, but they're very happier. But उनके challenges अलग है, क्योंकि they you know became immigrants at the age of early 50s, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। मैं उनके साथ एक्चुअली एक एपिसोड करने वाली हूँ। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर देम स्पेसिफिकली, गो डाउन इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज़ गोइंग टू बी एंड ऑफ द ईयर स्पेशल एपिसोड विथ द मोजेस फैमिली, विथ माई पेरेंट्स, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अलग रहा है, स्पेशली विथ कोविड एंड द वॉर एंड यू नो एज इंडियन जूस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहेगा। तो आप जाइए, क्योंकि आई एम गोइंग टू फिल्म दैट एपिसोड इन द नेक्स्ट आई थिंक 1 week और 10 days। तो आपके पास अभी भी टाइम है। गो डाउन इन द कमेंट सेक्शन और मुझे बताइए। द फोर्थ थिंग इज फ्रेंडशिप्स एंड कम्युनिटी। ओके, एज समबडी हु लव्स टू बी अराउंड पीपल, मुझे काफ़ी दिक्कत हुई। अगेन मेरा थोड़ा एक्सेप्शन था, क्योंकि मैं यहाँ पे आई थी कोविड के टाइम पे, और जब कोविड हुआ था तब किसी को मिलने का तरीका था नहीं, बिकॉज यू नो सब लोग लॉकडाउन में थे, सब डर रहे थे मिलने को। व्हेन आई इवन स्टार्टेड टू डू माय हिब्रू क्लासेस, सब जूम पे हो गया था, सो आई डिडंट इवन हैव इन पर्सन क्लासेस। तो इट डिपेंड्स आप कौन से एज ग्रुप में हो और कौन से सिचुएशन में भी आते हो। इफ़ you go to a country, especially for university or work, I think it's just easy to make friends, क्योंकि आप वहाँ पे naturally लोग मिल जाते हैं बात करने के लिए। As somebody who has pursued her education in India and you know I wanted to work, मेरे लिए काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि मैं कम्युनिटी के बिना सर्वाइव नहीं कर पाती हूँ। मैं मतलब अकेले, ठीक है, एक आधा दिन जस्ट by myself I enjoy, but I need my friends around, I need you know people from the community around। तो मुझे काफ़ी efforts डालने पड़े। I went for so many events, शबात dinners जो Friday dinners होते हैं, people invite, but वो invite आने के लिए भी you have to you know be friends with some people। synagogue जाओ, जैसे मंदिर होता है, I think मंदिर is a spiritual spaces are very good places to meet good people। या जो फेस्टिवल्स होते हैं स्पेशली इज़राइल में, पुरीम हो या हनुका हो, यहाँ पे कम्युनिटी फेस्टिवल्स काफ़ी सारे होते हैं। बट टू बी अ पार्ट ऑफ इट तुम्हें एफर्ट डालना पड़ेगा, कि हम कभी कभी ऐसे एज देसी पीपल हम हमारे कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। वी वांट टू मोस्ट लाइकली बी फ्रेंड्स विद इंडियन पीपल, विच इज़ आई थिंक यू शुड डेफिनेटली हैव। आई थिंक इंडियन फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सोल, क्योंकि अगर आप एक इजरायली फ्रेंड है आपका और आपको यू नो हिंदी में अगर आपको रैंड करना है, कंप्लेन करना है, तो आप उनको नहीं कर पाओगे। नेचुरली आपको जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है आप पूरी तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे या आर्टिकुलेट नहीं कर पाओगे। तो इन दैट केस यू नीड योर इंडियन फ्रेंड्स एंड जस्ट एंड फॉर मी इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई नीड टू बी इन टच विथ माई रूट्स। माई इंडियन आइडेंटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट
स्पेशली अगर आप सिटी में रहते हो, आई थिंक इट्स वेरी नाइस टू हैव अ मल्टी कल्चरल ग्रुप. एक अमेरिकन हो, यूके से हो, ऑस्ट्रेलियन हो, यहाँ पे मिडल ईस्टर्न काफ़ी सारे हैं, यू नो, यमनी, मोरक्कन, इराकी, ईरानियन, काफ़ी सारे लोग हैं जिसके यू नो जिनके मिडल ईस्टर्न रूट्स हैं, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जूस फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा मेल्टिंग पॉट है. तो आई थिंक दैट इज़ वेरी नाइस. And I think the best thing about being Indian abroad is अपना जो सॉफ्ट पावर है वो अपना कल्चर है जो लोगों को बहुत पसंद है. इजराइल में सीन क्या हुआ ना, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, 3-4 रेस्टोरेंट्स है. इन्फ्लुएंसर तो कोई था भी नहीं वो टाइम पे, कंटेंट क्रिएटर. मे बी देयर आर सम फ्यू आर्टिस्ट, देयर वाज सम इजरायली आर्टिस्ट जो इंडिया जाके आर्ट सीख के, योगा हो या इंस्ट्रूमेंट हो या कथक, भरतनाट्यम हो, ओडिसी, वो सीख के यहाँ पे सिखाते थे. बट इट्स नॉट इनफ. तो मैंने फिर डिसाइड किया दैट आई वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट. कि मैंने बोला कि यार मुझे कंप्लेन नहीं करना, एंड आई वांट टू बी अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन ऑल्सो. क्योंकि जो अपना जो पीआर है इन द वर्ल्ड, अच्छा भी है और ख़राब भी है, एंड यू नो फॉर ऑल द रीजन्स. तो मुझे वो इम्प्रूव करना है और मुझे कंट्रीब्यूट करना था, इसलिए मैंने चालू किया. विच ब्रिंग्स मी टू माई लास्ट पॉइंट, विच इज़ पर्पस. जब आप रहते हो किसी और देश में, आप पैसे कमाने के पर्पस से ही मत जाओ. yes, that is one of the biggest goals, क्योंकि could be the currency difference and stuff like that, or standard of living. But as an Indian person, what do you bring to the community, ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है. Yes, India is progressing, economy is boosting, अपना soft power is like hardcore, एक number, but you living in the diaspora really makes a difference. क्योंकि see, listen, when people think of India, they look at our tech companies, they look at our prime minister, they look at our culture, look at our cinema, but that is not enough. उनको अगर one-on-one experience अगर मिलता है, वो हमसे मिलता है, जो हम as देसी पीपल जो बाहर रहते हैं, उनको वन ऑन वन हमारे से इंटरेक्शन करने को मिलता है. एंड फॉर दैट रीजन, ये मैं बहुत बोलती हूँ, एंड आई फील लाइक इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. हमारी नाक मत कटवाना. वी हैव कम अ लॉन्ग वे, और बहुत मेहनत की है. ठीक है, नॉट जस्ट मी, एवरीबडी हु इज़ राइट नाउ लिविंग अब्रॉड बहुत मेहनत कर रहे. तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करोगे, इट कम्स ऑन द एंटायर कंट्री, इट कम्स ऑन द एंटायर यू नो nationality, and then it's like, अरे जितना मेहनत किया था वो सब बिखर गया. So you know, whatever you're thinking or planning, like try and do it with good intention, good purpose देने का, because trust me, whatever you give will come back 10x, but good things take time, तो वो आप ध्यान में रखना. That's it. That brings me to the end of this video. I hope you like this video. ऐसे ही मैं और videos बनाने वाली हूँ on my personal experiences. मुझे लगता है कि I should be talking to you guys more. We have crossed more than 80,000 subscribers now. So for those who are new, welcome. And for those who have been supporting me from day one or from my early days of content creation on YouTube, Dhanyavad. Your support means a lot to me. So I will see you in the next video. If you want me to talk about very specific topics as somebody who's living in the Indian diaspora, go down in the comment section and let me know, or even anything specific to the Indian Jewish community or Israel or India, Israel. Now's your time, because I'm going to take as many recommendations I can. In the meantime, stay safe, watch the right content, and I'll see you next time.